اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم۔ میں راجہ ضمیر احمد خان گورنمنٹ بائز پرائمری اسکول ڈوبن سے آپ سے مخاطب ہوں۔ بچوں آج تاریخ ہے 28 مئی 2021، جماعت ہماری ہے 5ویں۔ مضمون ہے یعنی جو ہم کتاب پڑھنے جا رہے ہیں وہ اردو ہے۔ تو موضوع ہے دوستی۔ سبق کا نام ہے بچوں دوستی۔ بچوں کل ہم نے پڑھا تھا کہ احمد اور ندیم کیا تھے، دوست، بچپن کے دوست تھے۔ وہ بہت پہلے سے ہی ان کی دوستی تھی دونوں، اور کیا کرتے دونوں ایک جماعت میں پڑھتے تھے، ایک اسکول میں پڑھتے تھے، اور ان کے گھر بھی نزدیک تھے۔ بچوں وہ اسکول جاتے، اکٹھے جاتے، پڑھائی کرتے، اکٹھے کھیلتے کودتے، غرض جہاں جاتے وہ اکٹھے نظر آتے تھے۔ اور جتنے وہ بڑے ہوتے گئے ان کی دوستی کیا ہوتی گئی، پکی ہوتی گئی۔ تو ایک دن اسکول میں اساتذہ نے طے کیا کہ ایکسکرشن جانا ہے۔ بچوں کو جب یہ اطلاع ملی تو وہ بہت خوش ہوئے۔ تو انہوں نے اپنی تیاریاں، پکوان، کھانے پینے کا سامان، پیسے وغیرہ کی تیاری شروع کر دی۔ احمد اور ندیم نے بھی کیا کیا، انہوں نے اپنی تیاری شروع کی۔ ہر بچوں نے اپنی الگ الگ ٹولیاں اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر بنائی۔ احمد اور ندیم نے بھی اپنی ٹولی بنائی، اور انہوں نے طے کیا کہ گھر سے کون کیا بنا کر، کیا پکوان، کیا سبزی، چاول، روٹی، کون کیا بنا کر لائے گا۔ یہ ہم نے بچوں کل پڑھا تھا۔ آج اس آگے پڑھیں گے، پھر بعد میں جب وہ ایکسکرشن کے لیے نکل گئے پھر بعد میں آگے کیا ان کے ساتھ کیا ہوا، کیسا رہا ان کا سفر۔ تو بچوں آج ہمیں پڑھنا ہے آج آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 34 نکالیں، اور نیچے جو سبق ہمیں دوہرا رہا ہے وہ اس آگے ہم شروع کریں گے۔ بچوں نیچے لکھا ہے، اوپر بس کا نقشہ بنایا ہے اور بچے بس پر چڑھ رہے ہیں۔ اس کے نیچے جو سبق ہے وہی آج ہمیں پڑھنا ہے۔ لڑکے ان میں سوار ہوئے، اساتذہ بھی ان کے ساتھ تھے۔ بسیں پہلگام کی طرف چل پڑیں۔ احمد اور ندیم بس میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے تھے۔ دونوں بہت خوش تھے، پہلی بار ایک ساتھ شہر سے دور تفریح کے لیے جا رہے تھے۔ بس میں دوسرے بچوں کی طرح وہ بھی آپس میں ہنس کھیل رہے تھے، ایک دوسرے کو لطیفے سنا رہے تھے، گا رہے تھے۔ چند گھنٹوں میں وہ پہلگام پہنچ گئے۔ پہلگام کشمیر کا ایک صحت افزا مقام ہے۔ اپنی خوبصورتی اور آب و ہوا کی وجہ سے یہ دنیا بھر میں مشہور ہے۔ احمد اور ندیم نے پہلگام کے بارے میں سنا تو تھا، لیکن آج پہلی بار وہ اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ تھوڑی دیر گھومنے کے بعد جب سب لڑکے کھانا کھانے کے لیے ایک جگہ جمع ہوئے، احمد اور ندیم نے بھی اپنی ٹولی کے ساتھ کھانے کی چیزیں مل بانٹ کر کھائیں۔ کھانا کھانے کے بعد سب لڑکے مختلف اطراف میں سیر کو نکلے۔ کچھ لدر نالے کے کنارے کی طرف چل پڑے، کچھ بازار کی جانب گئے اور کچھ جنگل کی سیر کو گئے۔ احمد اور ندیم بھی جنگل کی طرف نکل گئے۔ راستے میں اونچے اور گھنے پیڑ تھے، ارد گرد کا نظارہ بے حد خوبصورت اور دلکش تھا۔
अहमद और नदीम एक दूसरे का हाथ थामे साथियों को पीछे छोड़कर आगे निकल गए। उन्हें इस बात का ख्याल ही नहीं रहा कि वो घने दरख्तों और झाड़ियों में गुजरते हुए बहुत दूर निकल गए हैं। अचानक उन्हें एक खौफनाक आवाज़ सुनाई दी। जंगल की खामोशी में इस आवाज़ ने दोनों को डरा दिया। उतने में अहमद को थोड़े ही फासले पर एक रीछ नजर आया। रीछ उनकी तरफ आ रहा था। अहमद ने नदीम का हाथ फौरन झटक दिया और फुर्ती से एक पेड़ पर चढ़ गया। आज बच्चों इतना पढ़ेंगे। अब मैं आपको ये पैराग्राफ समझाने जा रहा हूँ। लड़के इनमें सवार हुए। किस में सवार हुए? बच्चों लड़के। यानी दूसरे दिन जब बच्चे स्कूल पहुंचे तो बसें बाहर खड़ी थीं। लड़के उन बसों में सवार हुए। उस्ताद भी उनके साथ थे। उस्ताद की जमा है उसातिज़ा। उसातिज़ा क्या है? उस्ताद की जमा। एक को बोलेंगे उस्ताद, एक मास्टर को बोलेंगे उस्ताद, और बहुत सारे आपके उस्ताद को बोलेंगे उसातिज़ा। उसातिज़ा भी उनके साथ, यानी उनके उस्ताद भी उनके साथ थे। बसें पहलगाम की तरफ चल पड़ी। बसें कहाँ किस तरफ गई? पहलगाम की तरफ गई, क्योंकि उनको पहलगाम एक्सकर्शन जाना था। अहमद और नदीम बस में एक दूसरे के पास बैठे थे। अहमद और नदीम क्या थे बच्चों? एक दूसरे के पास बैठे हुए थे, एक ही सीट पर बैठे थे। दोनों बहुत खुश थे। कौन कौन बहुत खुश था? अहमद और नदीम बहुत खुश थे। पहली बार एक साथ शहर से दूर तफरीह के लिए जा रहे थे। यानी वो जिंदगी में पहली बार कहीं दूर सैर करने जा रहे, एक साथ सैर करने जा रहे थे। वो इकट्ठे कहीं पहली बार सैर करने जा रहे थे। बस में दूसरे बच्चों की तरह वो भी आपस में हंस खेल रहे थे। यानी दूसरे बच्चे बस में खेल रहे थे और अहमद और नदीम भी उनकी तरह खेल रहे थे, हंस रहे थे, एक दूसरे को लतीफ़े सुना रहे थे, गा रहे थे और गाना भी गा रहे थे। चंद घंटों में वो पहलगाम पहुंच गए और कुछ घंटों के बाद वो कहाँ पहुंच गए? पहलगाम पहुंच गए। पहलगाम कश्मीर के एक सेहत अफजा मकाम है। पहलगाम क्या है बच्चों? कश्मीर के एक सेहत बख्श मकाम है, यानी सेहत अफजा मकाम है। अपनी खूबसूरती और आब हवा की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। पहलगाम क्या है बच्चों? पहलगाम बहुत खूबसूरत जगह है। यह अपनी खूबसूरती और वहाँ का पानी जो है बहुत साफ शफाफ पानी है, और वहाँ की जो हवा है वो भी बहुत साफ है। उसकी वजह से वो दुनिया भर में मशहूर है। अहमद और नदीम ने पहलगाम के बारे में सुना तो था, लेकिन आज पहली बार वो अपनी आंखों से देख रहे थे। अहमद और नदीम ने पहलगाम का नाम तो सुना था, लेकिन वो आज पहली बार अपनी आंखों से पहलगाम को देख रहे थे। थोड़ी देर घूमने के बाद सब लड़के खाना खाने के लिए जमा हुए। यानी कुछ वक्त गुजरने के बाद सब लड़कों ने क्या किया? खाना खाया और एक जगह जमा हुए। अहमद और नदीम ने भी अपनी टोली के साथ खाने की चीजें मिल बांट कर खाईं। अहमद और नदीम ने क्या किया? जिसने जो घर से बना के लाया था, जो चीज लाई थी खाने की, वो उन्होंने एक दूसरे के साथ मिल बांट कर खाई। खाना खाने के बाद सब लड़के मुख्तलिफ एतराफ में सैर को निकले। जब खाना सब बच्चों ने खाया तो सब लड़के मुख्तलिफ सिमतों में सैर करने को निकल गए। तरफ की जमा है इतराफ, सिमत। मुख्तलिफ इतराफ में वो कहाँ निकले? सैर करने के लिए निकले। कुछ लिदर नाले के किनारे की तरफ चल पड़े। कुछ कहाँ गए? जो वहाँ नाला था उस नाले किनारे सैर करने के लिए निकल गए। कुछ बाजार की जानब गए और कुछ बच्चे गए कहाँ गए? बाजार की जानब गए। और कुछ लड़के जंगल की सैर को गए और बाकी कुछ लड़के कहाँ गए?
जंगल की सैर करने को गए। अहमद और नदीम भी जंगल की तरफ निकल गए। अहमद और नदीम ने क्या किया, वो भी जंगल की सैर को निकल गए। रास्ते में ऊंचे और घने पेड़ थे, यानी जंगल तो जंगल ही होता है, जंगल में तो पेड़ होते हैं, बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं, वो बहुत घना होता है। इस तरह उस रास्ते में क्या थे, जहाँ पर वो जा रहे थे, ऊंचे और घने पेड़ थे। इर्द गिर्द का नज़ारा बेहद खूबसूरत और दिलकश था। यानी जंगल के आसपास नज़ारा क्या था, वो दिलकश, दिल खींचने वाला और खूबसूरत था। अहमद और नदीम एक दूसरे का हाथ थामे साथियों को पीछे छोड़कर आगे निकल गए। अहमद और नदीम ने क्या किया था, एक दूसरे का हाथ पकड़ा था, वो बाकी साथियों को, बाकी दोस्तों को पीछे छोड़कर बहुत उनसे आगे निकल गए। उन्हें इस बात का ख्याल ही नहीं रहा कि वो घने दरख्तों और झाड़ियों में से गुजरते हुए बहुत दूर निकल गए हैं। उनको ये ख्याल नहीं रहा कि वो जंगल बहुत घना है और घनी झाड़ियां भी हैं, इनसे गुजरते हुए बहुत दूर बहुत दूर चले गए थे। अचानक उन्हें एक खौफनाक आवाज़ सुनाई दी। जंगल में बच्चों पता है, जंगल में खौफनाक आवाज़ आती है, वो कैसे आती है, क्योंकि जंगल में जंगली जानवर रहते हैं। तो इस तरह उन्हें भी एक अचानक एक खौफनाक आवाज़ सुनाई दी, जो आवाज़ उन्होंने पहले कभी नहीं सुनी थी। जंगल की खामोशी में इस आवाज़ ने दोनों को डरा दिया, क्योंकि जंगल में हमेशा खामोशी सन्नाटा होता है, तो अचानक किसी कुछ आवाज़ सुनाई दी तो इंसान डर ही जाता है। इस तरह उन्होंने भी अचानक आवाज़ सुनी, खामोशी में एक उनको आवाज़ सुनाई दी तो वो डर गए। उतने में अहमद को थोड़े ही फासले पर एक रीछ नजर आया, तो उन्होंने देखा, जब उनको आवाज़ सुनाई दी, आपने इर्द गिर्द देखा तो अहमद ने देखा कि एक रीछ आ रहा है, उसको एक रीछ नजर आया। रीछ उनकी तरफ आ रहा था। रीछ किस तरफ आ रहा था, अहमद और नदीम की तरफ आ रहा था, क्योंकि वो जंगली जानवर है, वो उनको खाने के लिए आ रहा था। तो अहमद ने नदीम का हाथ फौरन झटक दिया। बच्चों, अहमद और नदीम ने एक दूसरे का हाथ तब तक पकड़ रखा था, बहुत गहरे दोस्त थे। तो जब अहमद को रीछ नजर आया कि रीछ हमारी तरफ खाने के लिए आ रहा है, तो अहमद ने फौरन नदीम के हाथ से अपना हाथ छुड़ा दिया, झटक कर छुड़ा दिया और फुर्ती से एक पेड़ पर चढ़ गया। फुर्ती बची हो तेजी से वो क्या किया, उसने एक दरख्त पर चढ़ गया। नदीम ने, बस बच्चों आज हमने यहाँ तक पढ़ा, कल से आगे पढ़ेंगे, फिर बाद में रीछ ने क्या किया, नदीम में क्या हुआ, तो इधर आगे हम कल पढ़ेंगे। बच्चों, जो सबक आज हमने पढ़ा इसका आप सफ़ा ज़रूर लिखना और ये सबक याद करना। तो अगले सबक तक आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।